प्रमुख श्री विजयभाई मेवावाला, उपप्रमुख श्री निखिलभाई मद्रासी, नीरवभाई मांडलेवाला, मृणालभाई शुक्ला, सीए प्रदीप सिंघी, केतनभाई दलाल, उपरांत सीए ध्रुव मारडिया અને અલ્પેશભાઈ મંડોત. આપણે સૌ જેની ખૂબ આતુરતાથી રાહ જોઈએ છે તેવા આપના ચીફ ગેસ્ટ શ્રી મોતીલાલજી ઓસવાલ. તો વાત કરી રહ્યો હતો કે સુરત અને સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતના ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટમાં ચેમ્બર ઓફ કોમર્સનો ઘણો સારો સહકાર રહ્યો છે. એ પછી શહેરમાં ઉદ્યોગ અને ઇન્ડસ્ટ્રીના કોઈ પ્રશ્નો હોય કે ટ્રાફિક જેવી સમસ્યાનું કંઈક સમાધાન કરવાનું હોય, આ દરેક માટે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સે ઘણી મહેનત કરી છે. અને ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ પોતાની વિવિધ કમિટીઓ દ્વારા આ શહેરમાં નવા વિકાસના મુદ્દાઓ ઉઠાવે છે, નવા ઇનિશિયેટિવ લઈ રહ્યા છે. તેવી જ આજની જે આ ઇવેન્ટ છે તે આજની કેપિટલ અને કમોડિટી માર્કેટના ઉપક્રમે થઈ રહ્યો છે. ફ્રેન્ડ્સ, કમોડિટી અને કેપિટલ માર્કેટે લાસ્ટ યરમાં કેવા પ્રોગ્રામ કરેલા બધાને યાદ જ હશે. અને આ વખતે પણ એવા જ કોઈ ધમાકેદાર પ્રોગ્રામથી આપણે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે. તો આવા પ્રોગ્રામના માટે આપણે બધાને આપણા જે મંચસ્થ મહાનુભાવો છે તેને તાલીઓના ગડગડાટથી વધાવશું. પ્લીઝ વેલકમ ચેરમેન ઓફ મોતીલાલ ઓસવાલ, ધ મેન હિમસેલ્ફ, શ્રી મોતીલાલ ઓસવાલ. ભાઈ વઘાસિયા, સેક્રેટરી શ્રી નીરવભાઈ માંડલેવાલા, ખજાનચી શ્રી મુનાલભાઈ શુક્લ, પ્રદીપભાઈ સિંઘી, લલિતભાઈ શાહ તેમજ અન્ય ડાયસ પર બિરાજમાન મહાનુભાવો, મિત્રો, આ 20 વર્ષમાં ગુજરાતનો જીડીપી 93,000થી વધીને 22,00,000 થયો. આજના પેપરમાં આપ સૌએ વાંચ્યું હશે, ભાસ્કરમાં મેઇન હેડિંગ છે. અને ભારતની પ્રતિ વ્યક્તિની આવક 18,000થી વધીને 2,75,000 થઈ. આટલું જે વિકસિત ભારતનું સ્વપ્ન છે મોદી સાહેબનું, તે શરૂઆત થઈ ગઈ છે 2047ની. મૂડીમાં રોકાણ આ જ ગાળામાં 20 વર્ષમાં 700 કરોડ હતું, તે અત્યારે 60,000 કરોડ પર પહોંચી ગયું છે. અને બીજી વાત એ કે કોવિડ પછી આપણી ત્યાં એફડીની સંખ્યા બેન્કોની પણ લગભગ ડબલ પ્લસ થઈ ગઈ છે. આ સૂચવે છે ભારતનો વિકાસ. અને મોદી સાહેબનું જે સ્વપ્ન છે 3જા નંબરની ઇકોનોમી બનવાનું, તે તરફ આપણે મંડાણ ચાલુ કરી દીધા છે. 2027 સુધીમાં જે લક્ષ્ય આપ્યું છે તો મને એવું લાગે છે કે આપણે તે પહેલાં જ પાર કરી જઈશું. અને આમાં મેઇન રોલ ભારતીય શેર બજારનો છે. હાલમાં આપ લોકો જાણો જ છો કે ભારતીય શેર બજાર નવા વિક્રમો સર્જી રહ્યું છે અને નવી ઊંચાઈ હાંસલ કરી રહ્યું છે. શેર બજારમાંથી અનેક લોકો સારો નફો મેળવી રહ્યા છે અને અનેક નવી કંપનીઓ માર્કેટમાં પોતાનું સ્થાન બનાવવા માટે આવી રહ્યા છે. અહીં હું યંગસ્ટરોને જોઈ રહ્યો છું કે આજે એક મને માહિતી મળી આજે જ કે કોલેજના છોકરાઓ પણ આજે ડીમેટ એકાઉન્ટો ખોલાવતા થઈ ગયા છે અને નાના સ્ક્રીન પર જ શેરબજારની લેવેચ કરતા થઈ ગયા છે. એટલે શેરબજારનો ક્રેઝ આજે વધ્યા. આના આંકડાઓ વિશે જો વાત કરીએ તો એક રિપોર્ટ અનુસાર વિશ્વના માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનમાં ટોચના દેશમાં સર્વપ્રથમ અમેરિકા છે, જે 56.49 લાખ કરોડ ડોલર, ત્યારબાદ ચીન 8.86 લાખ કરોડ ડોલર અને બીજા સ્થાને છે, અને ભારત અને જાપાન જે ત્રીજા સ્થાને છે, જે 6.30 લાખ કરોડ ડોલર સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. જો આપણે ભારતની વાત કરીએ તો હાલમાં બીએસસી લિસ્ટેડ કંપનીઓનું એકત્રિત માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન વિશ્વમાં હોંગકોંગને પાછળ મૂકીને 5.20 લાખ કરોડ ડોલરનો આંક
પાર કરી ગયો છે અને ચોથા સ્થાને આવી ગયું છે, જે 434.88 લાખ કરોડની નવી ઊંચાઈએ પહોંચ્યું છે, જ્યારે હોંગકોંગનું માર્કેટ કેપ 5.17 લાખ કરોડ ડોલર છે. આપણે 5.20માં આવ્યા છે એટલે આપણે ચોથા સ્થાન પર આવી ગયા છીએ. ભારતમાં એનએસસી પર સક્રિય ગ્રાહકોની સંખ્યા માર્ચ 2024માં 1.1% વધીને 40.8 મિલિયન થઈ ગઈ છે. એનએસસીના કુલ સક્રિય ગ્રાહકોમાં ટોચના 5 ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકરોનો હિસ્સો 63.8% છે, જે ગયા વર્ષે માર્ચ 2023માં 59.9% હતો. તે વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. એટલે ભારત ગ્રો કરી રહ્યું છે. શેર બજાર બાબતે જ્યારે ગુજરાત અને સુરતની વાત કરવામાં આવે તો આખા દેશમાં સક્રિય રોકાણકારોની દ્રષ્ટિએ સુરત, અમદાવાદ અને રાજકોટ એ ટોચના 10 જિલ્લામાં સ્થાન મેળવ્યું છે. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા આંકડાઓ પ્રમાણે સ્ટોક ટર્નઓવરની દ્રષ્ટિએ અમદાવાદ એપ્રિલ માસમાં 63,000 કરોડ રોકાણની વૃદ્ધિ કરી છે. રાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ અમદાવાદનું સ્થાન ત્રીજું છે, જ્યારે સુરતને 28,028 કરોડ સાથે દેશના રોકાણકારોમાં 9મો નંબર મેળવ્યો છે. આ આંકડાઓ એવું બતાવી રહ્યા છે કે રાષ્ટ્રીય સ્તરે શેર બજારમાં રોકાણ કરવામાં ગુજરાત રાજ્યએ નોંધપાત્ર ભાગીદારી લીધી છે. ઇન્ડિયાના જીડીપીમાં ગુજરાતનો હિસ્સો આમ તો હાઈએસ્ટ છે જ, અને ગુજરાતના જીડીપીમાં સુરતનો હિસ્સો હાઈએસ્ટ છે. અને સુરત આજે ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ સિટી તરીકે ડિક્લેર થયું છે, ત્યારે આપણી પણ ફરજ બને છે કે સુરતને આપણે ત્રીજા નંબરના સ્થાન પર લાવવો, અને શેર બજાર જે હિસાબે ચાલી રહ્યું છે તો આપણે ટાર્ગેટ અચીવ કરી શકીશું. શેર બજાર ક્ષેત્રે ખ્યાતનામ એવી મોતીલાલ ઓસવાલ ફાઇનાન્સ સર્વિસીસની સ્થાપના વર્ષ 1987માં 1987માં મોતીલાલ ઓસવાલ અને રામદેવ અગ્રવાલ એક નાના સબ બ્રોકિંગ યુનિટના રૂપમાં કરી હતી. તે ભારતની સૌથી જૂની સ્ટોક બ્રોકિંગ ફર્મમાંની એક છે. તે ખાનગી સંપત્તિ, રિટેલ બ્રોકિંગ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ બ્રોકિંગ, એસેટ મેનેજમેન્ટ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કિંગ, પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી, કોમોડિટી બેન્કિંગ, કરન્સી બ્રોકિંગ અને હોમ ફાઇનાન્સ જેવા જુદા જુદા પ્રોડક્ટ્સ અને સર્વિસીસ પ્રદાન કરે છે. ભારતને ટોપ 10માં સ્થાન ધરાવતી મોતીલાલ ઓસવાલ કંપનીના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને શેર બજારના તજજ્ઞ શ્રી મોતીલાલ ઓસવાલ દ્વારા શેર બજારના વિવિધ દાવપેચ સમજી સુરતી ઉદ્યોગ સાહસિકો અને બ્રોકરો નફો મેળવશે તેવી આશા સાથે, અને આપણે એક એવી પણ આશા રાખીએ કે એમને સાંભળીએ અને અહીં આવ્યા છે તો એવો કંઈક બેનિફિટ આપે કે સુરત ગ્રો કરે ને સુરતના યુવાનો, નવયુવાનો જે શેર બજારમાં કામ કરી રહ્યા છે હજુ વધુ ઉત્સાહથી અને હજુ વધુ ધગશથી કામ કરે, એવા કંઈક મોટિવેશનલ આપણે કહી જાય. અને સાહેબ લોકોની એવી ઈચ્છા છે साहब, लोगों का ऐसी इच्छा है कि आप यदि आए हो तो कुछ ऐसा टिप्स दे दो कि मेरा काम सरल हो जाए, ऐसी लोगों की इच्छा है. तो आप सर्वे का मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ. तो हम फिर आगे प्रोग्राम में सब उनको, मोतीलाल जी को सुनने के लिए उत्सुक हैं. आभार. जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात. થેન્ક યુ વિજયભાઈ. મને ચોક્કસ આશા છે કે આજના ચીફ ગેસ્ટથી તમારી માંગણીને માન આપીને કંઈ આપણું કામ કરી જ દેશે. ભારતની સંસ્કૃતિ અને ચેમ્બરની પરંપરા પ્રમાણે આપણા આવેલા ચીફ ગેસ્ટનું સ્વાગત કરીએ. હું ચેમ્બરના પ્રેસિડેન્ટ, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ, ખજાનચી, ઇમિડિયેટ પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ તથા સર્વે મહાનુભાવોને વિનંતી કરીશ કે શ્રી મોતીલાલજી ઓસવાલ સાહેબનું મોમેન્ટોથી સ્વાગત કરે. Thank you.
थैंक यू एवरीबॉडी। फ्रेंड्स, अभी आगे बढ़ते हुए आज सेरेमनियल एड्रेस के लिए मैं श्री प्रदीप जी सिंघी को आमंत्रित करना चाहूँगा। शहर के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट है और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस प्रोवाइड करता है। ऑडिटिंग, टैक्सेशन, रीएश्योरेंस भी मैं समझता हूँ, प्रोजेक्ट फाइनेंस, और न केवल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बल्कि एक बहुत सक्सेसफुल प्रोफेशनल है और काफ़ी सामाजिक प्रवृत्ति में, जैसे कि जीतो हो गया वगैरह, ऐसे बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आप सब जने जिस चीज़ के लिए इकट्ठा हुए हैं आज, और मैं भी उसी चीज़ के लिए इकट्ठा हुआ आया हूँ, ऑनरेबल श्री मोतीलाल जी ओसवाल साहब, इनके लिए बाकी दुनिया की हर चीज़ सबने सुनी होगी, पढ़ी होगी, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान है, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो मानव नहीं, एक महामानव है। निश्चित रूप से मेरे वर्ड मैं सोच के कह रहा हूँ, मानव नहीं, ये महामानव है। जैन समाज के तो ये सर्वोपरि एक, जिसे कहते हैं बेश की कोई नूर है, ये वही वर्ड मैं कह सकता हूँ। लेकिन बिजनेस में सक्सेस, शेयर मार्केट की सफलता, ऊंचाइयों को हासिल करना वगैरह वगैरह, डेट्स ओके, वो शायद औरों ने भी की होगी। लेकिन एक अच्छी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ही इज़ ए प्योर एथिकल पर्सन। व्यापार में इस लेवल की ऊंचाइयों को हासिल करना एथिक्स के साथ में, और इतनी सरल भाव, सरल भाषा, सरल व्यक्तित्व, और हर जगह जहाँ उनकी सरलता ही सरलता झलकती हो, और जो समाज को वापस चुकाने में बिलीव करते हो। एक शब्द मैं जरूर निश्चित रूप से कहना चाहूँगा, ये वो शख्स है, वो शख्सियत है जो जैन कम्युनिटी के हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और ऊपर से मारवाड़ी हैं। यस, उसके बावजूद 1250 करोड़ रुपया, 1250 करोड़ रुपया उन्होंने अपने हार्ड अर्नड मनी को सोसाइटी बेटरमेंट के लिए दिया, जो लकीली थोड़े ही समय में आज की तारीख में 4000 करोड़ रुपया है। निश्चित रूप से सब जने खड़े होकर तालियां बजाए, ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये व्यक्ति शेयर मार्केट का बादशाह नहीं है, दिल का बादशाह है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, आपने तो बहुत थोड़े में बहुत सारा कह दिया, और दूसरा भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अगर अच्छे भाव से कुछ देते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन आसानी से होता है। सिमिलरली एथिकल प्रैक्टिस से जो काम करते हैं उसका रिजल्ट भी ऐसा ही आता है। वो चीज़ से अवगत कराने के प्रदेश भी आपका खूब खूब धन्यवाद। अभी आज का प्रोग्राम क्या है, ये प्रोग्राम से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो हमें गाइड करने के लिए मैं हमारे ग्रुप चेयरमैन श्री कमलेश भाई को इनवाइट करना चाहता हूँ। कमलेश भाई के अंडर में हमारी कैपिटल मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट कमेटी आती है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कमेटी आती है, फूड एंड फूड प्रोसेसिंग कमेटी आती है, और पिछले साल में उन्होंने भी बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम IPO प्रेन्यर, फूड प्रेन्यर वगैरह किया है। आशा रखते हैं कि ये साल भी आप कुछ नया करेंगे। थैंक यू। નમસ્કાર। ધી સધન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની કેપિટલ એન્ડ કોમોડિટી માર્કેટ દ્વારા આયોજિત આજના ભવ્ય પ્રોગ્રામમાં હું ખૂબ હૃદયપૂર્વક આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ચેમ્બરના સુકાની વિજયભાઈ મેવાવાળાના નેતૃત્વમાં આજે આ પ્રથમ પ્રોગ્રામ આ હોલની અંદર થઈ રહ્યો છે, અને આપ સર્વેનો ઉત્સાહ જોતા આખાય ઓફિસ બેરરનો આપે જે ઉત્સાહ વધાર્યો છે ને, એ માટે આપ સર્વેને હું ખૂબ તાળીઓથી અભિવાદિત કરવા માંગુ છું। મિત્રો, સેન્સેક્સ 1 લાખ તરફ આગળ વધી રહ્યો છે, અને આ 1 લાખ તરફ જતા સેન્સેક્સમાં ભારતીય રોકાણકારોનું પાર્ટિસિપેશન પણ ખૂબ મોટી માત્રામાં વધી રહ્યું છે। ત્યારે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ તરીકે અમો પણ દક્ષિણ ગુજરાતના માત્ર વેપારીઓ ઉદ્યોગકારોનું નહીં, પણ દક્ષિણ ગુજરાતના રોકાણકારોનું પણ હિત જળવાય એ આશયથી ઘણા સમયથી વિવિધ પ્રોગ્રામોનું આયોજન કરતા રહ્યા છીએ। ગત વર્ષે અમોએ સમીર અરોરાજીને ચેમ્બર બોલાવ્યા, અને તેના દ્વારા અમે વેલ્થ ક્રિએશન મંત્ર રમેશભાઈ વઘાસિયાના નેતૃત્વમાં કર્યો। આ વેલ્થ ક્રિએશન મંત્ર દ્વારા અમે દક્ષિણ ગુજરાતના રોકાણકારોને આશ્વસ્ત કરાવવા માંગીએ છીએ કે વેલ્થ ક્રિએશન ઇટ ઇઝ અ આર્ટ।
આ 8ને કેળવવી પડે. આ કોઈ ડ્રીમ 11 પર ટીમ બનાવીને કે ફોરેક્સના સટ્ટાથી ન થઈ શકે. આના માટે કંઈક શીખવું પડે, કંઈક મહેનત કરવી પડે, કંઈક મેળવવું પડે, કંઈક જ્ઞાન અર્જિત કરવું પડે. લક્ષ્મીની જો ઉપાસના કરવી હોય ને તો પહેલાં સરસ્વતીને પૂજવી પડે. અને એ સરસ્વતીના પૂજક તરીકે આજે આપણે કંઈક જ્ઞાન લેવા ભેગા થયા છે. એ જ્ઞાનને પીરસનાર વ્યક્તિત્વ એટલે મોતીલાલ ઓસવાલ આપણી વચ્ચે આજે એક એવું વ્યક્તિત્વ છે કે જેઓ 40 લાખથી વધારે ક્લાયન્ટ ધરાવે છે. 4 દાયકાથી તે આ માર્કેટના માંધાતા તરીકે કામ કરતા હોય ને ત્યારે આપને હું આશ્વસ્ત કરાવવા માંગુ છું કે માર્કેટ ઉપર જતું હોય, નીચે જતું હોય, માર્કેટની દશા અને દિશા જાણવા માટે કદાચ આપ આપના ડીલરને ફોન કરતા હો, કદાચ બ્રોકરને ફોન કરતા હો, કદાચ કોઈક મિત્રને કે ટીવીના ન્યૂઝ ચેનલની ઉપર આધાર રાખતા હો, પણ આપણી વચ્ચે કદાચ આવું વ્યક્તિત્વ આવું ને એ પ્રદીપભાઈ સિંઘજી જેવા વડીલના આશીર્વાદથી શક્ય બન્યું છે કે પ્રદીપભાઈ આપે મોતીલાલજી જેવા માનધાતાને અમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત કર્યા. પ્રદીપભાઈને જોર તાળીઓથી વધાવીએ. પ્રદીપભાઈ હંમેશા ચેમ્બરનું પીઠબળ સમાન બન્યા છે અને આજે પણ પ્રદીપભાઈ આપના માર્ગદર્શન હેઠળ આ કાર્યક્રમ શક્ય બન્યો છે. અમે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. ચેમ્બરની કેપિટલ એન્ડ કોમોડિટી માર્કેટ કમિટી આ વર્ષે ખૂબ વિવિધ પ્રોગ્રામોનું આયોજન કરશે, જેમાં બજારની વાતો નામની નવી સિરીઝ વિજયભાઈના નેતૃત્વમાં શરૂ થશે. શેર બજારની વાતો શેર બજારના લોકો દ્વારા શેર બજારની અંદર આ એક નવા કોન્સેપ્ટ સાથે આપણે આ દિશામાં આગળ વધવા જઈ રહ્યા છીએ. ચેમ્બરનું સોફ્ટ સ્કેલ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર નાનપુરા મુકામે ખૂબ સારી રીતે ચાલી રહ્યું છે, જેમાં ટેક્સટાઇલ ઉપરાંત વિવિધ કોર્સોનું ખૂબ સારી રીતે તેનું આયોજન થતું હોય છે. આ વર્ષે વિજયભાઈના નેતૃત્વમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને સ્ટોક માર્કેટના વિવિધ કોર્સોનું પણ શોર્ટ ટર્મ કોર્સોનું પણ આયોજન આ વર્ષે અમે કરવા જઈ રહ્યા છો. આપ સર્વેને પણ હું આ નાના કોર્સની અંદર આવો અને આ કોર્સની માહિતી લઈ અને આપના વિચારોને વધુ સારી રીતે મજબૂત કરો એ માટે આમંત્રિત કરું છું. વધુ કંઈ ન કહેતા છેલ્લે એક જ વાત કહીશ કે कुछ तुम बदल के देखो, कुछ हम बदल के देखें. सर, आज हम एज ए इन्वेस्टर कुछ चीज़ें ऐसी है कि कुछ हमें भी बदलनी पड़ेगी और कुछ यहाँ से एज एन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमें भी बदलनी पड़ेगी. हम खाली टेक्सटाइल और डायमंड की बातें करेंगे, ये आज के 1 लाख के तरफ जता सूचकांक के बारे में नहीं हो सकता है. तो हम भी ये दिशा में आगे हैं कि स्टॉक मार्केट के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करें. અને રોકાણકારો તરીકે કેટલીક બાબતો તમારે બદલવી પડશે. કે કેવી બાબતો? કે ટિપ્સ ઉપર ટીપ ઉપર આધારિત ન રહેતા કંઈક નવું લર્નિંગ કરો, કંઈક સારા વિચારો સાથે નવા વિચારોની ગતિમાં આગળ વધો, કંઈક પ્લાનિંગ થાય. એટલા માટે જ कुछ तुम बदल के देखो, कुछ हम बदल के देखे. आओ साथ में बैठ कर 2 दिलों को बदल के देखे. આ રોજ ફોન કરીને કહેતા હોય ને કે આ ગલ્લે ઊભા કા લઈ લેજો, વેચી નાખજો, એ ઉપર આધાર નહીં રાખતા. એ 2 દિલોને કહેજો કે રજા લે. कुछ तुम बदल के देखो, कुछ हम बदल के देखे. आओ साथ में बैठ कर 2 दिलों को बदल के देखे. आईने की तस्वीर तो बदल सकते नहीं हम. मार्केट ऊपर जाए કે નીચે જાય આપણે બદલી શકવાના નથી. आईने की तस्वीर तो बदल सकते नहीं हम, पर आओ साथ में मिलकर सूरत के रोकाणकारों की दशा और दिशा को बदल के देखे. आप સૌ અહીં મોટી સંખ્યામાં આવ્યા. આપ સર્વેનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. ભવિષ્યના પ્રોગ્રામમાં પણ આપ આવતા રહેશો એના માટે આમંત્રિત કરું છું. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ કમલેશભાઈ. તમારા આવો ઉત્સાહ જોઈને લાગે છે કે સેન્સેક્સ નહીં, નિફ્ટી 1 લાખ પર પહોંચી જશે. ગુડ. આજના ખૂબ મોંઘેરા મહેમાનનો પરિચય આપવા માટે હું શ્રી કેતનભાઈ દલાલને ઇન્વાઇટ કરવા ઈચ્છું છું. કેતનભાઈ સુરતના સૌથી જૂના બ્રોકરમાંના એક, રાધર સૌથી જૂના બ્રોકર એબ્સોલ્યુટલી એ છે. બાબુલાલ હીરાલાલ નામની એમની કંપની છે. મારા દાદા તો ચોક્કસ એમને ત્યાં કામ કરતા હતા, એટલા જૂના છે. અને ચેમ્બરની કેપિટલ માર્કેટ કમિટીમાં એના ડેવલપમેન્ટમાં એમનું પ્રદાન હંમેશા અગ્રગણ્ય રહ્યું છે. થેન્ક યુ. Thank you, Rakesh Bhai, for your kind words. Good afternoon, friends. It is an honor and a privilege to introduce a visionary leader and an exemplary entrepreneur whose name has become synonymous with financial excellence and innovations in the Indian financial market. Is none other than Mr. Motilal Oswal. The co-founder and chairman of Motilal Oswal Financial Services has dedicated over 3 decades to shape the landscape of investment and brokerage services in India. Mr. Oswal's journey began with a humble beginning with a clear vision
to create a firm that not only offer top-notch financial services, but also empower investors with knowledge and opportunities. Under his dynamic leadership, Motilal Oswal Financial Services has grown from a small brokerage firm into a diversified financial services powerhouse, renowned for his commitment to research-driven insights, customer-centric approach, and unwavering integrity. Beyond his professional achievement, Mr. Oswal is a beacon of inspiration for aspiring entrepreneurs and financial professionals. His relentless pursuit of excellence, coupled with his deep understanding of market, has earned him numerous accolades and recognition both nationally and internationally. Franchising World magazine awarded him the Hall of Fame for excellence in franchising. Institute of Chartered Accountants has titled him as Excellent Business Achiever of Financial Services. Today, we have distinct pleasure of having Mr. Motilal Oswal himself for better understanding of market. Please give him a very warm welcome to Sri Motilal ji. Thank you very much. सर आइए, सब आपको सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, प्लीज़। नमस्ते। आदरणीय विजय भाई, all the members on the dais, all the friends, it's really a pleasure, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ और मुझे यहाँ मौका दिया गया है कि मैं अपने विचार आप सबके सामने शेयर करूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रदीप जी का, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और पुल किया कि आई मस्ट रियली कम विथ यू एंड शेयर माय थॉट्स। तो मुझे लगता है कि जितना शेयर बाज़ार का नॉलेज आप सबको है, मुझे नहीं लगता है कि उससे मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज होगा, बिकॉज आप शेयर बाज़ार के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, डिस्कस करते हैं। मेरा बहुत कम समय जाता है उसमें डिस्कशन में, बट हम लोग कुछ ऐसा ब्रॉडर ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं, कुछ डेटा की तरफ देखते हैं एंड देन सी के भी कहाँ पर हम जाने, कहाँ से आए और कहाँ हमारी डायरेक्शन है। एक्चुअली मैं एक प्रेजेंटेशन आपको करना चाहता था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ, बट दैट कुड हैव एटलीस्ट गिवन यू अ वेरी डिफरेंट डेटा पॉइंट। बहुत अच्छा डेटा मैंने बनाया था, लेकिन उसका मैं जिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा कि कहाँ पर हम इंडियन इकोनॉमी को देखते हैं कंपेयर टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, और उसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या होता है और उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेसेस पे कैसा होता है। एंड देन हम लोग कोशिश करते हैं भी कौन से स्टॉक अच्छे हैं, कौन से स्टॉक अच्छे नहीं हैं। तो अगर मैं आपके सामने बोलता हूँ तो कि भाई मेरे पास ये 5 अच्छे स्टॉक ये अच्छे हैं लार्ज कैप में, 5 अच्छे मिड कैप में हैं, तो मुझे लगता है मेरा भाषण 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सबको उसी का इंतजार है। किसी के पास समय नहीं है, क्यों इतना लंबा चौड़ा सब इतना समय दें और इतने सब डेटा देखें, और ज्ञान चाहिए। सबको ज्ञान नहीं चाहिए, सबको एक्शन चाहिए। बट लेट मी शेयर यू दैट हमको सब कुछ पता है। There is a huge difference between knowing and doing. Most of us know, हमको सबको पता है हमको क्या करना है, लेकिन क्या हम कर पाते हैं वो मुश्किल होता है।
करना बहुत, सलाह देना इजी है, लेकिन करना बहुत डिफिकल्ट है। हमको पता है कि भाई हमको हेल्थ मैनेजमेंट करना है, हमको डिसिप्लिन करना है, हमको कुछ न कुछ ज्ञान बढ़ाना है, हमको रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, लेकिन जब करने जाते तो दुनिया भर के प्रेशर आते हैं, लॉट ऑफ पुल्स एंड प्रेशर, मॉर्निंग टू इवनिंग ये 25 चीज़ें ये करनी है। सो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है हमारे पीछे रह जाती है, अर्जेंट चीज़ों के पीछे। सो मोस्ट ऑफ द सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी इमीडिएट प्रायोरिटीज़ को चेंज करते रहते हैं और उसके कारण अपनी लॉन्गर टर्म प्रायोरिटीज़ को भूल जाते हैं, और वैसे ही इन्वेस्टमेंट में हो रहा है। बस साहिब हाउ टू मेक मनी, बस आज ये करिए, सवारे 9:15 करिए, अपने 10 वागे पाचा वेची नाखिए, 11 वागे वेची, 12 वागे ले लिए। एवरीबडी इज इन द गेम ऑफ चेजिंग मनी, वो बहुत डिफिकल्ट है। अब देखिए कहाँ पर हम खड़े हैं। विजय भाई ने बहुत अच्छे आंकड़े दिए कि भी कहाँ पर हमारा इकोनॉमी का साइज है, कहाँ हम बढ़ रहे हैं, हमारा रैंकिंग क्या है। आप देखिए कि हम लोग 4 साल पहले रैंक 7 पर थे जीडीपी में, अभी आज की तारीख में 5 है। ये साल शायद एक आध साल में हम 4 पे आ जाएंगे, नेक्स्ट ईयर तक हम वर्ल्ड में 3 आ जाएंगे। तो उसका इम्पैक्ट क्या? इम्पैक्ट यही है कि जब जीडीपी बढ़ती है तो डेफिनेटली हम सबकी इनकम बढ़ती है। अभी हमारा इनकम करीब, आप डॉलर टर्म्स में देखिए, करीब $2500 पर कैपिटा इनकम है। तो जब 1000 इनकम थी हमारी कुछ साल पहले, 8-9 साल पहले, तो हम लोग उसमें से ऑन एन एवरेज $900 हमारा ऐसी डे टू डे लिविंग में चला जाता है। $100 रहता है हमारे पास सेविंग्स करने लिए या कंज्यूम करने के लिए। अब जब 2500 हो गया है तो पहले 900 की जगह हमारा शायद खाने पीने में शायद हो सकता है 1100-1200 चला जाए। तो हमारे पास बहुत बड़ा जो पैसा बचता है उसको या तो हम कंज्यूम करते हैं या हम उसको सेव करते हैं। तो ये बहुत बड़ी थीम्स है, 2, कंजम्पशन की और सेविंग्स की। तो इसे सेविंग की बात करें कि पिछले अभी ऑन एन एवरेज हमारा सेविंग करीब 28 से 30% है, कभी 1-2% बढ़ जाता है। सो 28 से 30% अगर हमारा जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन है, थोड़ा सा कम है बट ये साल के एंड तक 4 के आजू बाजू हो जाएगा। तो आप देखिए अगर 30% भी सेविंग है तो हमारा 1.2 ट्रिलियन, मतलब 1 ट्रिलियन हम डॉलर में थोड़ा बात करते हैं बिकॉज आप ग्लोबल की बात कर रहे हो। तो 1 ट्रिलियन मतलब 83 रुपये का अपन गिने तो 83 लाख करोड़, और 1.2 गिनेंगे तो करीब आप 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ की आपकी एनुअल सेविंग्स होगी। कहीं कहीं तो जाएगी वो। सबसे बड़ा एसेट क्लास क्या घर में जाता है, उसके बाद कैश रहते हैं लोगों के पास, फिर एफडी में जाता है, फिर इंश्योरेंस पीएफ उसमें जाता है, और इतना सब कर करके इक्विटी में जाता है करीब आज की तारीख में 4%, 4 से 4.5%। सेविंग्स का ये हाउस होल्ड सेविंग जितनी भी हमारा 4-4.5% खाली इक्विटी में जाता है, जो पहले 2% था 2-2.5 साल पहले। और बड़ी कंट्रीज में ये करीब 45 से 50% है। तो अभी भी आपको लगता है कि बहुत तेजी हो चुका है, अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है ये। और मैं नहीं बोलता हूँ कि इमीडिएटली बाजार कल से बढ़ जाएगा, 1 साल में बढ़ जाएगा, वो किसी को नहीं पता। 1 साल में हो सकता है 10% गिरे, हो सकता है 20% बढ़ जाए। तब मैं आपको ट्रेंड की बात करता हूँ कि अगर हमारी 4% से जीडीपी की उसमें हमारी स्टॉक में जाती है, 8 से 9% हमारी इंश्योरेंस और पीएफ और उसमें जाती है, 15 से 16% कहीं बैंक में जाती है, और 51% का भी हमारा रियल एस्टेट में जाता है। तो ये अगर 4 वाला 5, 6, 8, 45, 50 है डेवलप्ड कंट्रीज में, तो ये सेविंग्स का बड़ा पैसा तो आपका मार्केट में आना ही वाला है। ये डोमेस्टिक है, फॉरेन इसको तो आप भूल जाओ। अगर आप वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट हो एंड 3rd लार्जेस्ट हो लेकिन फास्टेस्ट हो, हमारे पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन है
we are the we are the 5th largest, but we are the fastest economy. तो अभी चाइना ने इतना पैसा लिया, बहुत पैसा गया पूरा ग्लोबल मार्केट्स का. नाउ इंडिया, हमारा शेयर एलोकेशन में बढ़ रहा है, तो वो भी बढ़ता जाएगा. तो जब डोमेस्टिक सेविंग्स मार्केट में आएगा, ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी अगर यहाँ आएंगे, तो क्या होगा? अल्टीमेटली मार्केट में पैसा आएगा तो स्टॉक का प्राइस तो बढ़ने वाला है. और 1% इंक्रीज अगर 4% से 5% होता है, 8 लाख करोड़ रुपया नया आता है. अगर 4 से 5 होगा तो 8 लाख करोड़ नया आएगा हर साल, हर साल. और सेविंग जो आप देखेंगे ना, पिछले 25 साल का मैं आंकड़ा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है. पिछले 25 साल में हमने एज ए कंट्री, एज ए देश में करीब 13 से 14 ट्रिलियन डॉलर सेव किया. ओवरऑल सेविंग्स हम 28-30% सेव करते हैं जीडीपी का. तो 13 से 14 ट्रिलियन अगर सेव हुआ 25 साल में, अगले 25 साल में कितना होगा? कोई बताइए भाई बहन, कोई भी, कितना होगा अगले 25 साल में? और 25 साल तो हम जिएंगे, जीना ही है हमको. 10 टाइम्स. आप एकदम सही बोल रहे हैं, करीब 8 से 10 गुना. तो अगर 14 ट्रिलियन हुआ है तो 100 से 110 ट्रिलियन डॉलर नया सेविंग जनरेट होगा सिस्टम में. कहाँ जाएगा बताइए मुझे? ये पैसा जाएगा अच्छी कंपनियों में. कुछ पैसा अच्छी कंपनियां नहीं, उसमें भी जाएगा, लेकिन बड़ा पैसा और सस्टेनेबल पैसा जाएगा. हम लोग बोलते हैं क्वालिटी कंपनीज, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ कंपनीज. क्वालिटी एंड ग्रोथ. पहले क्वालिटी देखिए और उसके साथ ग्रोथ भी देखिए. क्यों जी? तो अच्छी कंपनियां, क्वालिटी और ग्रोथ कंपनियों की तो हमेशा शॉर्टेज रहने ही वाली है. तो मेरी आपसे एक ही सलाह है कि जस्ट अगर आप अच्छी कंपनियां होल्ड करते हैं, बाजार नीचे जाएगा, डोंट वरी, आप और खरीदिए. 4 वर्ड ध्यान रखना: बाई राइट, सिट टाइट. कुछ करने आपको बाजार में देखने का जरूरत ही नहीं है. जितना आप बाजार में ज़्यादा देखोगे ना, उतना आपका नफा कम होगा. जितना बाजार से दूर रहेंगे और चुपचाप अच्छे स्टॉक लेके बैठे रहेंगे, आपका बहुत बड़ा एप्रिसिएशन होने ही वाला है. मैं 37 साल से देख रहा हूँ. मैं पर्सनली 100% पैसा अपना स्टॉक में डालता हूँ. स्टॉक मतलब म्यूचुअल फंड्स में. पहले स्टॉक में डालता था, फिर कंप्लायंस रेगुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड, टाइम नहीं मिलता है. हमारी फंड्स में मैं पूरा म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देता हूँ. भाई साहब, हर 3.5 साल में मेरा पैसा डबल हुआ है सिंपल म्यूचुअल फंड्स में. बट मैं लकी भी हूँ, आपका पैसा इंडेक्स में भी 5 से 5.5 साल में डबल हुआ है इंडेक्स में. तो फिर क्यों आप इतना भाग दौड़ रहे हैं, इतना ये करो, वो करो, वैसा करो? आपको जितना कम डिसीजन लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है. तो ये आपका सेविंग बूम. एंड आप देखिए, मैं आपको एक और 1979 में इंडेक्स आया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. 100 का इंडेक्स था. आज की तारीख में कितना है आप सबको पता है? कितना है? 77 था. एक्चुअल में 1,10,000 है. क्यों? डिविडेंड आपका री इन्वेस्ट होता है. तो 100 का 1,10,000 मतलब कितना गुना हुआ? 1100 गुना. उसी साल में आपका गोल्ड हुआ है करीब 86 टाइम्स, 85 to 86 टाइम्स. 1100 गुना 86 टाइम्स. एफडी हुआ है 60 टाइम्स. फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाला है आपने, टैक्स काट दो, बिकॉज हर साल थोड़ा बहुत टैक्स भी लगता है. तो 60 टाइम्स, 85, 86 टाइम्स एंड 1100 टाइम्स. फिर भी 4% लोग इन्वेस्ट डालते हैं स्टॉक्स में.
और सबका पैसा नहीं बनता है 4% में भी, प्लीज अंडरस्टैंड। लॉट ऑफ पीपल बिकॉज दे डोंट बाई राइट, दे बाई रॉन्ग स्टॉक्स, और बट दे बाई राइट बट दे सेल अर्ली, दे डोंट होल्ड इट टाइट। तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसमें आपको ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। हैव द स्ट्रेटेजी, आपका अपना प्लानिंग कर लीजिए और मस्त एकदम कुंभकर्ण की जगह सो जाइए व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट। जितना ज़्यादा हमारे जैसे लोगों को फ़ोन करोगे ना, आपके अच्छे शेयर चले जाएंगे। जितना ज़्यादा CNBC और आज तक और जी देखोगे ना, अपने शेयर आपके बिकने वाले हैं। तो ब्रोकर्स लोगों से दूर रहो आप। मैं बोल रहा हूं, मैं ब्रोकर हूं, आप उनसे लॉन्ग टर्म की सलाह लो कि सर आप मुझे बताइए कौन सा शेयर मेरे बेटे और पोते के लिए लेना है, ऐसा सवाल पूछो उनको। आप उनको सवाल ये मत पूछो सर अभी क्या लगता है कल क्या होगा, परसों क्या होगा। ना उसको पता है ना भगवान को पता है कल क्या होने वाला है बाजार में। 1 साल बाद भी किसी को नहीं पता। मैं देखता हूँ जिसने भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश की है, दे हैव गॉन रॉन्ग। और अभी आपने देखा होगा कोविड में कैसा बाजार तूफान हुआ। पहले साल गिरा 50-55% गिरा, नेक्स्ट ईयर वापस एकदम से बढ़ गया। तो सबके अच्छे अच्छे शेयर थे ना, सबके मोस्टली चले गए और वापस खरीद नहीं पाए वो। लेकिन मैं कोविड से पहले भी 100% इन्वेस्टेड था, कोविड की बाद में भी 100% इन्वेस्टर। मुझे 40-50% गिरा मेरे पोर्टफोलियो, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, बिकॉज मुझे पता है जिस साल बाजार गिरता है 40%, उसके अगले साल उसका ज़्यादा उससे बढ़ता है। आप हिस्ट्री देख लीजिए, मेरे पास तो डेटा है। सो क्यों चिंता करते हो आप, गिरने दो, क्या फर्क पड़ता, वापस बढ़ने वाला है। तो अगर इंडेक्स 100 का अगर 1 लाख हुआ है तो ये 13% एवरेज है, खाली 13.5%। आपका कॉर्पोरेट अर्निंग्स इटसेल्फ इज 13.5%। कॉर्पोरेट अर्निंग, जितना कॉर्पोरेट की अर्निंग बढ़ती है उतना इंडेक्स बढ़ता है। सिंपल फॉर्मूला है, एकदम साइंटिफिक। आई हैव ऑल द डेटा। सो आपको ये देखना है कि यार अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी का प्रॉफिट अगर 15% से बढ़ा है पास्ट में और फ्यूचर में मान लो 12% से भी बढ़ेगा, तो आपका स्टॉक 12-13 या तो 11% बढ़ेगा या 13% बढ़ेगा। ज़्यादा फर्क नहीं है, 5 से 7 साल में देख ला आप। डे टू डे, ईयर टू ईयर आप मत देखिए। सो इतना बड़ा सेविंग तो कंजम्पशन बूम ना, कंजम्पशन में फायदा कितना, कंपनियों का फायदा नो। कंजम्पशन बूम भयंकर चल रहा है इंडिया में। आप देखिए रिटेल स्टोरी देखिए, आप देखिए ना स्विगी और जोमेटो। हिंदुस्तान में GST बढ़ने का एक कारण है कि स्विगी और जोमेटो भी है। बुझिए पूरा आपका इकोनॉमी फॉर्मल हो गया। वहाँ तो कैश तो चलता नहीं, आप थोड़ी बोलते हैं कि भाई रोकड़ा ले जाए, रियल एस्टेट में तो चलता है थोड़ा बहुत यहाँ भी। तो इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो गया है काफ़ी हद तक। तो एक ऑर्गेनाइज बिजनेस से रिटेल है बहुत बड़ा होने वाला है। ज्वेलरी आप देखिए, ज्वेलरी, इवन रियल एस्टेट, क्वालिटी रियल एस्टेट आप देखिए, ओवरऑल इट्स इन गुड डिमांड। बिकॉज कंजम्पशन तो बूम, लोगों के पास आएगा पैसा तो कहाँ जाएगा, सबसे पहले घर भी जाने वाला है, फिर गाड़ी में जाएगा। ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, अभी जब जितने भी कारें हैं नई नई, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बना। सो यू नीड टू, कौन सी कंपनियां जो अच्छी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, आप देखिए टेस्ला, BMW, मर्सिडीज और टेस्ला का मार्केट शेयर देखिए। टेस्ला इज फार अहेड इन मार्केट कैप। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना यहाँ कौन सी कंपनी है, महिंद्रा कौन सी बना रही है, टाटा की कौन सी कंपनी बना रही है, कौन अच्छी कंपनी बना रही है आपकी, एंड आर दी गुड कंपनी। इवन स्कूटर्स में डिमांड तो रहने वाला है, बिकॉज व्हीकल प्रोडक्शन कंजम्पशन तो बढ़ने वाला है। Apparels, fastest growing segment is apparels, footwear. Digital payment companies or the digital platforms. So
कॉमन सेंसिकल है कि भाई मेरा कंजम्पशन कहाँ पर बढ़ेगा। मेरा हॉस्पिटलिटी, आप देखिए होटल्स एंड हॉस्पिटल्स, ये कैटेगरी बहुत बड़ा होगा। तो कंपनी लाइक इंडियन होटल्स, दे आर फैंटास्टिक मशीन्स टुडे, अनलेस देयर समथिंग कोविड जैसा प्रॉब्लम होगा। ऐसी ब्रांड आपको, ताज जैसी ब्रांड आपको मिलेगी नहीं होटल्स में। टाइटन ज्वेलरी जैसी ब्रांड, मतलब क्या घड़ी वाली कंपनी सडनली ज्वेलरी कंपनी बन गई। तो ये अच्छी कंपनी आना, जस्ट बाय राइट सिट टाइट, आप मस्ती मत करो। सो दिस सेविंग्स एंड कंजम्पशन स्टोरेज आर गोइंग। और सेविंग्स कहाँ जाएगा? बैंक्स में जाएगा। BFSI GDP जी ग्रोथ है उसके 50% या 100% ज़्यादा ग्रोथ होती है BFSI में। होम फाइनेंस कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, बैंक्स, ब्रोकरेजेस, बिकॉज आपका GDP का मोर देन 1/3 इज फाइनेंशियल सर्विसेज। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी। ये कॉमन सेंसिकल है, इसमें ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है आपको। वॉट इज रिक्वायर्ड इज द डिसिप्लिन। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि द इकोनॉमी इज ऑन द राइट ट्रैक थैंक्स टू पॉलिटिकल, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप। द ग्लोबल इन्वेस्टर्स ऑल्सो आर ह्यूजली नाउ लुक एट इंडिया कि भी अभी आप देखिए पैसा ऑलरेडी आ ही रहा है। एंड इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप में अभी इतने सारे IPO आएंगे, आई एम टेलिंग यू, बट आपको देखना है कौन सी अच्छी कंपनियां हैं। So, economy size is good, savings pool is huge, markets are going to do well. I don't know, short term में आप मत देखिए, आप ट्रेंड देखिए, ये बहुत अच्छा होने वाला है। तो इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज है, स्पेकुलेटर्स के लिए प्रॉब्लम है। आप देखिए राइजिंग मार्केट में 90% ऑफ द पीपल इन F&O लूज मनी। राइजिंग मार्केट में कैसे नुकसान हो सकता है मुझे बताइए? क्योंकि सब तो इन्वेस्टर पहले लेके फिर बेचते हैं, बेच के तो लेने वाले बहुत कम है, वो तो पैसा कमाते हैं स्मार्ट लोग। बट मोस्टली अगर आप बाई करके सेल करते हो राइजिंग मार्केट में लॉस कैसे सकता है, फिर भी 90% पीपल लूज मनी। हमने डेटा देखा था हमारी कंपनी में कि कैश में 75% लोग पैसा कमाते हैं। व्हेन आई लुक एट माय ओन डेटा कि 100 में से 77 लोगों ने पैसा बनाया कैश मार्केट में, और F&O में लॉस। सेबी का डेटा 92%, हमारे यहाँ शायद 75-80% लोगों ने लॉस किया। तो ऐसा क्यों काम करें जहाँ अपने को इतना मेहनत से पैसा कमाते हैं? पैसा कमाना बहुत मेहनत का काम है भाई साहब, लेकिन शेयर बाजार में आप इतने कई बार कैजुअली हो जाते हो, चलो ये देख लेते बाद में देख ले क्या होगा। तो आपको व्हाट आई कॉल ऑलवेज रिसर्च बिफोर यू इन्वेस्ट, नॉट आफ्टर। लॉट ऑफ पीपल एक बार तो ले लो, फिर जब नहीं होता, अरे यार अभी पूछते हैं उसको, अरे भाई साहब क्या हुआ, आपका रिसर्च क्या बोलता है? अरे भाई तूने तो अभी कर लिया, अभी क्या फ़ायदा है? व्हेन यू गो रॉन्ग तब रिसर्च याद आता है, जब आप सही होते हो तो आप होशियार हो। बट द मार्केट डजंट वर्क दैट वे। Market wants patience, market wants conviction. So please invest कीजिए, इंडिया स्टोरी बहुत स्ट्रांग है, आई एम टेलिंग यू। ये सोने की चिड़िया के दिन अपने वापस आ गए हैं। 18th सेंचुरी में हिंदुस्तान वॉज द बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ GDP, वर्ल्ड का नंबर 1 था हमारे पास। मोर देन 1/3, अबाउट 1/3 ऑफ GDP वॉज इंडिया, हिंदुस्तान। We went down to 1.5 to 1.7%. Now again we are going back. We are now at 4.8%. अमृतकाल 2047 में we will become about 10 to 11% of the world GDP.
तो आपके बिजनेस के लिए भी बहुत पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी, बिजनेस में भी, इन्वेस्टिंग तो बाद में आएगा, पहले हम लोग सब यहाँ एंटरप्रेन्योर है मोस्टली. सो वेर एवर you got business opportunities, I think do the right things. Ethics, very important. Quality of people, very, very important. What I call it, character and competence. तो जिसके पास कैरेक्टर है, वैल्यूज अच्छा है, क्वालिटी ऑफ बुक्स अच्छा है, गवर्नेंस अच्छा है और कॉम्पिटेंस है बिजनेस करने का, वो बिजनेस तो बहुत अच्छा करने वाला है यहाँ. तो ये सब देख के ये आपके लिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को इतना सिंपल कर दीजिए. इट हैज़ बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड व्हेन लाइफ बिकम कॉम्प्लिकेटेड यू नो इट्स डिफिकल्ट टू रियली मैनेज द लाइफ. सेम थिंग विद इन्वेस्टिंग. डोंट गो टू F&O, डोंट गो टू ऑल दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स. क्यों जाना है उनको? क्यों लीवरेज करना? वाई यू बोरो एंड बाई स्टॉक्स? द बिगेस्ट प्रॉब्लम हैपन व्हेन यू लीवरेज. बोरो करके टेंशन होता है यार, ब्याज तो लगता ही लगता है बट टेंशन बहुत होता है. तो आपका मेंटल पीस खत्म होता है, आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, आपका हेल्थ खराब हो जाता है और उसके साथ वेल्थ भी खराब हो जाता है. जो मैंने जो व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम डूइंग इट, दैट आई इन्वेस्ट ओनली फॉर. बहुत सारे स्टॉक फंड से मेरे पास 10-15 साल से पड़े, कोई टैक्स भी नहीं लगता है और बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. और देखो पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है. मुझे लगता है यार मैं राकेश झुंझुनवाला क्यों नहीं बन सकता? आपको लगता है कि मैं मोतीलाल ओसवाल क्यों नहीं बन सकता? आपके बाजू वालों को लगता है कि आप वो क्यों नहीं बन सकते? कंपेरिजन इज बैड, आई एम टेलिंग यू. देयर इज नो एंड टू दैट कंपेरिजन, देयर इज नो एंड टू एनी ग्रीड. यू हैव योर लाइफ, आप अपना लाइफ है मजे से जियो ना, क्या प्रॉब्लम? वी आर ऑल लकी, वी आर वेरी प्रिविलेज, गॉड इज वेरी काइंड टू अस, वी हैव जॉब्स, वी हैव बिजनेस एंड वी हैव सम मनी टू इन्वेस्ट. You got limited time for all of us. We should enjoy life, and then we should invest. Of course, we should put our best of us, but don't try to really, I think, copy others. Everybody is wired very differently. हर एक का अपना अलग स्टाइल होता है यार. तो मेरा यही कहना था कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में विश्वास रखिए, बहुत आपका लाइफ में शांति भी रहेगा और आपका वेल्थ भी बनेगा. Don't listen to too many people, don't read too much, don't talk about two things. Portfolio, just investing 3 महीने 6 महीने अपने एडवाइजर के पास बैठिए, रिव्यू कीजिए, उसके बाद अपने काम में लगे रहिए. That's my thought, that's my kind of, I think, practice, and not only my, but that's the global practice. Most of the successful investors make this process very simple. Quality and growth stocks, और वो नहीं समझ में आया तो फंड्स, अच्छे फंड जिनका 3 साल 5 साल का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, वो फंड आप खरीद लीजिए. और नहीं तो आप इंडेक्स कर लीजिए, और वो भी नहीं करना तो SIP कर लीजिए. आई एम टेलिंग यू, SIP इज द बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट, सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव, वेरी गुड. यू डोंट हैव टू टाइम द मार्केट. खराब टाइम में बंद मत करो, अच्छे टाइम में डबल मत करो. तो जैसे मैंने बताया कि द थीम्स क्या है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, आप SBI लीजिए, अच्छा है. पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक्चुअली दे आर डूइंग बेटर टुडे देन प्राइवेट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ नो ग्रोथ. प्राइवेट क्या सेक्टर महंगे भी बहुत हो गए ना, पब्लिक सेक्टर अभी भी महंगे हो, बट मुझे लगता है SBI है और ICICI दे आर ग्रेट बैंक्स. इंडियन होटल एंड टाइटन स्टिल दे आर गुड ब्रांड्स. महिंद्रा एंड महिंद्रा लुक्स गुड टू मी. गोदरेज प्रॉपर्टी अच्छा लगता मुझे. अशोक लेलैंड इज गुड. ऐसे आई थिंक बहुत सारी कंपनियां हैं विच आर वेरी सिंपल, कॉमन सेंसिकल, गुड क्वालिटी मैनेजमेंट, कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस दोनों. अच्छे बिजनेस है, सिंपल बिजनेस है, अच्छे मैनेजमेंट है, वो आप रखिए. एंड देन आई थिंक जस्ट एज आई सेड दैट बाई राइट एंड सिट टाइट. वी हैव गॉट फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी. ये कंट्री का
बहुत फ्यूचर अच्छा है, मार्केट का फ्यूचर बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने बताया कि सेविंग्स, कंजम्पशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड डोंट फॉलो द क्राउड। बाजार में जो 9 करोड़ एक्टिव इन्वेस्टर आपने बताया ना, बट रियल इन्वेस्टर्स एक्चुअल में 1-1.5 करोड़ ही है, रियल इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। बाकी तो सब व्हाट आई कॉल इट कसिनो प्लेयर्स, ये कसिनो है। तो ये एक शेयर बाजार ऐसी जगह, कसिनो भी खेल सकते हो आप, इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अदरवाइज रूल्स आर वेरी डिफरेंट। द मोमेंट यू मिक्स casino and investing rules, you have a problem. So I believe in investing, I don't believe in casinos. मैंने लाइफ में कभी कोई फ्यूचर ऑप्शन नहीं खरीदा। और मैं क्लाइंट को ये बोलता, लेकिन क्लाइंट सुनते नहीं। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव फ़ोन करते हैं, बॉस मत करो यार। नहीं सर, ये तो अच्छा है, पैसा कमाते हैं। मतलब तूने कभी कमाया क्या? नहीं अभी तो नहीं कमाया, आगे कमाएंगे ना। होप है ना, लालच और होप ऐसी है, उस पर कुछ नहीं कर सकते। सो दैट्स माई थॉट। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटीज। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, इट वॉज अमेजिंग। पर मुझे ऐसा लगा था कि साहब हमने आपको इनवाइट किया था कि हमें क्या करना चाहिए, आपने बोला कुछ नहीं करना है। एंड दैट इज एग्जैक्टली दैट इज द क्रक्स ऑफ द, क्योंकि इतना सिंपल डेटा मैंने आज तक इतने साल मार्केट में होने के बावजूद गौर नहीं किया था। डिपॉजिट में 60 टाइम बढ़ा है, गोल्ड में 86 टाइम बढ़ा है, और मार्केट ने 1100 टाइम्स रिटर्न दिया है। तो मतलब, और फिर भी हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ हुआ है? मार्केट में ही हुआ है। इसीलिए साहब ने जो बोला है, अच्छी चीज़ ले लो, बाई राइट सिट टाइट, और मेरे ख्याल से राइट। तो अभी साहब ने जो कहा, उसके बावजूद भी मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ ऐसी हो आप अभी भी जानना चाहते हैं, तो फ्लोर इज़ ओपन। कुछ भी क्वेश्चन आंसर करना है, प्लीज़ दीपक भाई। सर मुझे आपसे ये जानना है। हाँ जी सर, दीपक भाई प्लीज़। मेरा नाम दीपक सेठवाला है। अच्छा। सर मुझे ये जानना है कि लोग स्टॉक मार्केट जब भी ऊपर चढ़ता है सब लोग दौड़ते हैं, और हमारे यहाँ मीडियम इंडस्ट्रीज के लोग बहुत सारे ट्रेड इंडस्ट्री वाले हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना जो OEM का या अपने सप्लायर का पैसा देना होता है वो स्टॉक में लगा देते हैं, और उसकी वजह से मार्केट में रिसेशन हो जाता है, इंडस्ट्री में बहुत तकलीफ हो जाती है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? देखिए, मार्केट टाइमिंग किसी के हाथ में नहीं है। नोबडी कैन टाइम द मार्केट। तो जैसे देखिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ सेविंग से आता है, किसी के बोरो कर। मैंने पहले बोला कि आप लीवरेज करके, अल्टीमेटली वो बोरो ही है। आप अपने वेंडर्स का पैसा इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो या कहीं और से बोरो कर रहे हो। हमको बोलते हो सर हमको लोगों ने कहीं शेयर चाहिए, FNO ऑल्सो इज लीवरेज। सो लीवरेज इज बैड, नॉट नेवर बोरो। एंड मैं लाइफ में जब बिजनेस में 87 में स्टार्ट किया था, हमने 2 ही प्रिंसिपल रखे थे लाइफ में, मैंने और रामदेव अग्रवाल ने। वी विल नॉट लीवरेज, मतलब वी विल नॉट बोरो, एंड वी विल नॉट स्पेकुलेट इन अवर ओन अकाउंट। वो प्रिंसिपल में अभी भी हम लोग जिंदा है। बाकी सब हमारे साथ जितने भी लोग थे ना, 100 में से 99 लोग अभी दिखते नहीं कहीं। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल रूल। और मेरा बैलेंस शीट देख, मेरा लिस्टेड कंपनी है, आप बैलेंस शीट देख लीजिए। पूरा मेरा नेटवर्क का 80% मनी इज इन्वेस्ट इनटू माय ओन फंड्स। सिंपल, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों करना है मुझे? जैसे भाई साहब ने बताया ना, इफ विदाउट डूइंग एनीथिंग इफ योर पोर्टफोलियो अप्रिशिएट्स, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? बिल्कुल, हमको तो आदत है मस्ती करने की, रोज एक्शन करने की, रोज दौड़ने की। अरे क्या हो गया, ये हो गया, आज मोदी साहब उधर चले गए, आज चाइना ने ये कर दिया। अरे छोड़ो ना, कंपनी अपनी जिस हिसाब से चल रही है वो पैसा कमा रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो में अच्छा डिजाइन अच्छा हो रही तो पैसा बन रहा है वहाँ पर। आपको इंडियन हॉल के रूम इतने बिक रहे हैं, अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं आपको। सो अच्छी कंपनियां हैं, अच्छे बिजनेसेस है, दे विल कीप मेकिंग मनी, एंड आप तो उसका एक शेयर खरीदते हो। मोतीलाल जी ने जो बताया
कि लीवरेज नहीं करना, पर वो बोलते बोलते अटक गए, बोरो नहीं करना। उन्होंने तो लीवरेज कर दिया अपनी कंपनी को लिस्टिंग करा के। इससे अच्छा लीवरेज तो मैं नहीं समझता कि और कोई हो सकता है। नहीं, see, there also they are not borrowed. नो वही तो कि आपने हम- बोरो नहीं किया, नहीं। लीवरेज करने के अच्छा तरीका यह है। बहुत अच्छा तरीका है। आप आइए, Good. किसको लिस्टिंग करा, हम करा देते हैं आपका। लेकिन डोंट फॉरगेट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस एंड क्वालिटी ऑफ बिजनेस। अगर दो अच्छी है ना चीज़ें, तो आप आंख बंद के वो पैसा लगा दो वहाँ पर। और आपकी कंपनी भी ऐसी है, आई एम टेलिंग यू, बाजार में आपको पैसा मिलेगा, जितना चाहिए उतना मिलेगा। जिसको पैसा नहीं चाहिए बाजार उसको पूरा देता है, क्यों? उनको पता है अच्छे लोग हैं। मेरी एक कंपनी का एक रुपये की कंपनी है, तो क्या प्राइस है? 700 2800 का प्राइस। एक रुपये की फेस वैल्यू का 2800 का भाव है। गुड। मैंने एक बार हमने पैसा लिया था पब्लिक से, उसका 10 गुना तो लौटा दिया है, बाय बैक भी कर दिया। क्यों चाहिए पैसा आपको? सो व्हेन यू लुक एट शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, शेयर होल्डर्स हैव कीप ट्रस्ट इन यू। वंडरफुल फ्रेंड्स। एक आध बे क्वेश्चन, हाँ प्लीज। Sir, what is your outlook for Indian economy in Modi 3.0? बहुत अच्छा है सर, मैंने तो आपको बताया ना। ये साल अपन नंबर 4 हो जाएंगे, 2 साल में नंबर 3 हो जाएंगे। सो बहुत अच्छा है। अच्छे बिजनेस के लिए मैं बताना आपको, कंजम्पशन और सेविंग बूम 2 ही है इंडिया में। दे आर लिफ्टिंग द होल इकोनॉमी, आपके बिजनेसेस, कंपनीज, मार्केट्स, सब जगह। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, अनलेस सम कोई ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस होए या पॉलिटिकल सीरियसली डिस्टेबिलिटी हो, वो अभी दिखता नहीं। सर, माय क्वेश्चन रिलेट टू द सेम पॉइंट। 4 जून के पहले सब भारत रत्न की बात कर रहे थे, PSU इज गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? अच्छा है, अच्छा। देखिए वो देखिए PSUs अच्छे ही कर रहे हैं, करप्शन खत्म हो गया, उन्होंने अच्छे लोगों को लाना चालू कर दिया। सर, माय क्वेश्चन, बिजनेसेस अच्छे हैं। सर माय क्वेश्चन इज टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट। हाँ, Is the PSUs are going to give more return than the other players like name you say SBI, ICICI, Mahindra, all those? बट SBI तो PSU है ना। SBI PSU। Yeah, sorry. What about the ICICI, Mahindra, all those? सो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% पैसा आप PSU में डाल दो, आई एम नॉट सेइंग दैट, Okay. बट दिस इज ए गुड थीम। पहले तो जीरो हो गया था PSU इन्वेस्टमेंट। PSUs वर वेरी द मोस्ट हेटेड काइंड ऑफ इंडस्ट्री, Yeah. कि यार PS वहाँ पैसा नहीं डालना है। लेकिन अगर बिजनेस अच्छा है, ओके, और स्टेबिलिटी है, तो पैसा क्यों नहीं डालना चाहिए? So you consider both parallel? PSU See, should be given the depends same upon, it is. अब जैसे आपको बैंकिंग सेक्टर में पैसा डालना है ना, आई विल से दैट यू पुट मनी इनटू नॉट ओनली SBI बट पुट मनी इनटू ICICI बैंक, Right. पुट मनी इनटू समथिंग इनटू होम फाइनेंस कंपनी और NBFCs। डोंट पुट, मतलब जैसे बोलते हैं ना, डोंट कीप ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट। अरे आपने बोला था, मैंने तो सब SBI ले लिया, और हो सकता है SBI नहीं चले 1 साल, आपका पेशेंस खत्म हो जाए। ऐसा भी हुआ, 4-4 5 साल होल्ड किया, तब जाके स्टॉक चला है। Right, sir. Thank you, sir. પ્લીઝ યસ અહીંયા યલો શર્ટ, પછી તારા પર બી આવશે. બોલી દો, મને સંભળાશે, હું રિપીટ કરીશ. Good evening, sir, and Hi, it's a great pleasure to have you in Surat and hear you My live pleasure. in person. I wanted to understand from you that as a retail investor, how do we participate in the startup story that is developing in India? I mean, there's angel investing, a lot of limited people have access to, and Yeah. but the retail investors are out of this story. So, what is a good option for that? देखिए, कुछ फंड्स हैं, स्टार्टअप फंड्स भी है, वेंचर फंड्स भी हैं, ओके। सो अपॉर्चुनिटी ऑफकोर्स लिमिटेड है बिकॉज इट्स नॉट ए वेरी वाइड मार्केट, लेकिन कहीं न कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है। जैसे देयर आर फ्यू काइंड ऑफ आई थिंक वेंचर फंड्स है, एंजल फंड भी है, यू कैन हैव पुट देयर आर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आप जाके लगा सकते हो, बट उसमें लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, बट रिस्क भी बहुत ज़्यादा है उसमें। द मोर्टेलिटी रेट इन स्टार्टअप्स इज वेरी हाई, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। पुट इवन सी, आप क्यों, पहली बात तो अगर रिटेल इन्वेस्टर हो, क्यों पैसा डालना है स्टार्टअप? अच्छी कंपनियां मिल रही है आपको, यहाँ आप 10 कंपनियों में डालोगे, हो सकता है शायद एक ही सक्सेस हो, यहाँ 10 में से आपकी 8 सक्सेस होगी। ये दिस स्टार्टअप एंड दिस काइंड ऑफ मनी देयर फॉर HNI जिनके पास बहुत पैसा है, जैसे ग्लोबल फंड्स, दे पुट के चलो एटलीस्ट 5% ऑफ माई इक्विटी आई पुट इनटू दिस काइंड ऑफ कंपनीज, but my maximum money by everybody is put into the growth companies which are listed or unlisted, doesn't matter. अब जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड्स बहुत सारे who invest into growth companies,
सो सबसे बड़ा कैपिटल नहीं जा रहा है, और स्टार्टअप में कहीं आपको लगता है बिता फ्यू वेंचर फंड्स वेयर यू कैन पुट सम मनी. બોલો તમે ઠીક છે. યસ પ્લીઝ. Hello. હા Hi, ચાલ sir. ત્યાં સુધી તો ચાલુ કરી દે પ્લીઝ. Sir, what are the daily habits that has made you such a successful person? ગુડ ક્વેશ્ચન. देखिए मैं भी आपके जैसा ही हूँ, सवेरे उठता हूँ, थोड़ा जल्दी उठता हूँ. आपसे थोड़ा सा डिसिप्लिन है खाने में, आपसे नहीं मतलब ओवरऑल आई कीप डिसिप्लिन. मॉर्निंग देखिए मैं मॉर्निंग में उठता हूँ एनीवेयर बिटवीन 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में. ઓહ Sir, सोते कब हो? તો ક્વેશ્ચન है सोते कब है. जैनी आदमी हो, रात को खाता नहीं हो. I am also Jain. 30 दिन में से एक आध दिन हो जाता है शायद रात को खाने में, रात को खाते नहीं है, कोई और कोई आते हैं नहीं. तो अपने आप ही लाइफ में सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन आ जाता है. अच्छा मैं पढ़ाई करता हूँ, सवेरे जल्दी उठ जाऊँगा तो क्या करूँगा, पढ़ाई करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, बिकॉज दैट इज द बेस्ट टाइम. सो आपकी हैबिट्स एक्चुअली ब्रिंग्स लॉट ऑफ गुड इम्पैक्ट्स फॉर यू. और वो डिफ़िकल्ट है, जैसे मैंने बताया दिस इज डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड डूइंग. सबको पता है जल्दी उठना चाहिए, सबको पता है व्यायाम करना चाहिए, सबको पता है कम खाना चाहिए, सबको पता है रात को खाने और सोने के बीच में 3 घंटे का गैप चाहिए. कितने लोग कर पाते हैं? सो सबसे बेस्ट हैबिट है रीडिंग की, और डिसिप्लिन इन टाइमिंग एंड डिसिप्लिन इन ईटिंग. Thank you. चलो फाइन. अभी माइक वहाँ जा रहा है, उसके पहले सर मेरा भी एक छोटा क्वेश्चन है. जब हम वॉरेन बफे और चार्ली मुंजर को देखते हैं ना, तो इंडिया में आप और अग्रवाल जी भी ध्यान में आते हैं. तो क्या सीक्रेट है इतनी लंबी यारी का, और क्या सीक्रेट है इतनी लंबी पार्टनरशिप का? देखिए दिस पार्टनरशिप इज लाइक मैरिज, यू नीड टू हैव ब्लाइंड फेथ, राइट? अदरवाइज क्या होगा ना, पैसे का जब व्हेन इट कम्स टू मनी पीपल फील अरे यार क्या होगा, कैसे होगा. सो यू नीड टू हैव, फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू हैव ब्लाइंड फेथ इन दैट पर्सन. दूसरा, when we started we had complementary skills. He was good in research, I was good in business. दोनों एक ही जगह अच्छे होते तो फिर क्या फ़ायदा, दूसरे का फ़ायदा क्या है? दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ को बिल्ड करते हैं. दैट्स रियली आई थिंक वेरी सो रोल क्लैरिटी. पहली बात तो आई थिंक 99% इज ब्लाइंड फेथ. कोई भी रिलेशनशिप में हो, पार्टनरशिप हो, रिलेशनशिप हो, आई थिंक मैरिज हो, आई थिंक यू नीड टू हैव ब्लाइंड फेथ इन दैट पर्सन. वो फेथ नहीं है ना, देन यू हैव ए प्रॉब्लम. Yes, please. Hello, sir. My name is Hitesh. I'm also a chartered accountant. Sir, my question to you, in always, 5 to 7 years of phase, we have seen a situation like 2008, then COVID, where, a big opportunity come that people, invest a lot, invest aggressively, and, make money out of it. So, in this situation where we see that, market is at the lifetime high, and many global economists are saying that, there is a global economic bubble which is happening, that, you should hold a 20-30% cash at least for this kind of opportunity. You have already said that nobody is able to time the market, but in such situation, how do you see that? Should we hold cash at this all-time high market, or should we, keep on investing? देखिए मेरा फंडा तो मैंने बता दिया कि आई विल रिमेन इन्वेस्टेड 100%. मुझे कभी इंडिकेशन लगे कि यहाँ से 30% बाजार गिरेगा तो भी मैं तो नहीं बेचूंगा. मेरे जिस दिन डिविडेंड आता है उस दिन मैं खरीद लेता हूँ अपना म्यूचुअल फंड. दैट्स बिकॉज नोबडी कैन टाइम इट. ये जो पंडित है ना, पंडित को पूछो तूने क्या किया, लुक एट हिज बिहेवियर, वो कैश पे बैठा है क्या, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है. सो रिस्क मैनेजमेंट आपको लगता है कि भाई बहुत मैडनेस हो रही है, देन रिमेन एटलीस्ट आप साइड में हट जाओ थोड़ा. You should only have cash when you feel that market has become mad or the company has become mad. दो ही चीज़ें जब आपको बेचना चाहिए. When the market is mad, जब आपके ड्राइवर, कुक, बाजू वाला, आजू वाला सब बोलने लगे कि सर तूने तो स्टॉक में कुछ खरीदा है, मुझे पता है कौन सा खरीदना है. हम लोग को बहुत सारे लोग एडवाइस करने आते हैं, तब हमको लगता है कि चलो कुछ तो कुछ यहाँ कुछ होने वाला है. सो योर ओन फिल्टर शुड टेल यू कि देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग, देयर बबल हो गया है. जैसे बहुत सारी छोटी मोटी कंपनियां उसमें बबल है, तो आप क्यों जाते हो वहाँ पर? लॉट ऑफ स्मॉल कंपनीज में पता नहीं कितना 1000 टाइम 2000%, अनलेस आपको पता उसमें से नहीं बोलता एवरी कंपनी इज बैड, हर कंपनी खराब नहीं होती है. सो
डोंट बी ग्रीडी एंड गो टू अननोन कंपनीज जस्ट बिकॉज ऑफ आपके बाजू वाला बोल रहा है या कंपनी वाले तो सबसे पहले आपको गुमराह करेंगे. सो टाइम टेस्टेड, जैसे मैंने बताया ना कि गुड कंपनीज, क्वालिटी कंपनीज के पास जाओ, उसमें आप पैसा रखो ना, ठीक है ना, 30% गिर जाएगा ना, बाद में कहाँ जाएगा, वापस तो बढ़ने वाला ना. आपका 100 का इंडेक्स अगर 1 लाख हुआ है, सब कुछ हो गया, वॉर भी हो गए, कोविड भी आगे चला गया, लीमेन क्राइसिस भी हो गया, सरकारें भी गिर गई, देवगौड़ा जी साहब भी आए थे, प्राइम मिनिस्टर्स, बहुत सारे आके चले गए, तो क्या हुआ अल्टीमेटली, सब कुछ हो गया. किसको पता कल क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता है. हु नोज कि कोविड वापस आएगा, कोई उस कोविड का कोई बड़ा भाई आएगा, पता नहीं, हो सकता है कल न्यूक्लियर वॉर हो जाए, बट यू डोंट नो. बट देन व्हाट यू डू, आप घर में रख के भी क्या करोगे, क्या करोगे. सो यू हैव टू कीप योर सेविंग्स इन्वेस्टेड. अगर आपकी रिस्क एपेटाइट नहीं है, इक्विटी 50% लो, 30% लो. सो आपको अपना रिस्क देखना है. डोंट लुक एट उसने ऐसा पैसा बना लिया, मुझे इतना बनाना है, मत देखो भाई. आपकी लाइफ में शांति बहुत जरूरी है. व्हाट गिव यू गुड नाइट स्लीप, यू शुड डू दैट. बाजू वाले के घर में क्या, आपको गाड़ी बड़ी है, टीवी बड़ी है, मत देखो आप. आई एम राजेंद्र भाऊ सर, 20 ईयर्स से मोतीलाल ओसवाल के साथ हूँ. हाँ जी सर. आजकल डेल्टा ऑप्शन और फ्यूचर में कैश से ज़्यादा वॉल्यूम होता है, तो उसकी वजह से जो डिलीवरी बेस और जो लॉन्ग टर्म में जो ब्रोकर है, हमारे जैसे सब ब्रोकर है, उसको ज़रा दिक्कत आती है. तो आपका क्या मानना है कि डेल्टा ऑप्शन में आज खास करके साउथ गुजरात में ज़्यादा लोग आ गए हैं, यंगस्टर लोग, और जो टोटल वॉल्यूम जो हमारा BSC NSE का है, उसमें 90% वॉल्यूम फ्यूचर एंड ऑप्शन का होता है. तो आप जो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट अच्छा है, पर लोग क्यों कम हो रहा है. देखिए, सबको क्या है, शॉर्ट टर्म में एक्साइटमेंट चाहिए. आप कैसीनो में क्यों जाते हैं, एक्साइटमेंट है ना, शायद कुछ पैसा बन जाएगा. इसलिए आपने देखा किसी में कैसीनो ने पैसा बनाया, तो लोगों की आदत है स्पेकुलेशन का. ह्यूमन नेचर इज टू डू स्पेकुलेशन, टू बी ग्रीडी, बट वो अपने आप को डिसिप्लिन करना है आपको. फास्ट फूड मतलब सबको खट खट का 10 मिनट में चाहिए, ब्लिंकिट 10 मिनट्स, स्विगी 10 मिनट्स, अल्टीमेटली दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड वेल्थ. बट ह्यूमन नेचर है, क्या कर सकते हैं, यू गेट कैरिड अवे. सो जितना आप लाइफ में सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन रखोगे, उतना ही लाइफ विल बी पीसफुल एंड ऑल्सो यू विल मेक मोर मनी, आई कैन टेल यू. यस, एक मिनट प्लीज. सर, आपने बोला कि अच्छी कंपनी में, अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करो. हाँ जी. तो बैलेंस शीट से देखिए आप, एनालिसिस थोड़ा सा आपने तो किसी और को पूछिए. सी नहीं, मैं ये बोल रहा कि व्हेन वी लुक एट द कंपनीज, आई सेड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले कैरेक्टर, फिर कॉम्पिटेंस, कि भाई मेहनत, ईमानदार लोग है कि नहीं है. देखो, कंपनी वाले भी सब तो ईमानदार नहीं होते हैं, ईमानदार एक्चुअली कम होते हैं. ईमानदार इन द सेंस दैट जो बुक्स में जो दिखाते हैं, गवर्नेंस अच्छी है, गुड प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं. सो कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस के भी मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी कैसी है, और एक ही तरीका है, पिछले 5 साल में उसने कैसा रिजल्ट दिखाया. फ्यूचर में तो सब बोल बच्चन है, मैं भी बोल के चला जाऊंगा, बट भाई पास्ट तो देखो पहले. पास्ट परफॉर्मेंस is here indication, not 100% indication, but it's a good indication for future performance. म्यूचुअल फंड में उल्टा बोलते हैं वो, पास्ट परफॉर्मेंस इज नो गारंटी, बट पास्ट परफॉर्मेंस इज इंपॉर्टेंट. सो क्वालिटी मीन्स कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द मैनेजमेंट, एंड द क्वालिटी ऑफ बिजनेस मीन्स कैसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, और बिजनेस का आपको क्या लगता है, सेम थिंग, ग्रो हुआ है कि नहीं हुआ बिजनेस, मार्केट ट्रेंड्स क्या बोल रहे हैं, रिसर्च एनालिस्ट, पूरी सब रिसर्च अवेलेबल है आपकी सोशल मीडिया में, आप कहीं भी जाओगे कोई भी रिसर्च मिल जाएगा आपको. सो थोड़ा सा आप होमवर्क करेंगे, या आपका एक एडवाइजर अच्छा होना चाहिए, तो वो आपको बता देंगे क्या अच्छा है. सब एक छोटा मेरी और से भी क्वेश्चन है या तो रिक्वेस्ट है. हाँ जी सर.
जैसे कि लिस्टेड कंपनी की बात हो रही तो हमारे यहाँ भी जोटा फार्मा से हमेशा हिमांशु भाई केतन भाई हाजिर रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सूरत में हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन जीतो के मेंबर भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो हाजिर है यहाँ पर। तो सर यहाँ पर इतनी सारी इंडस्ट्री, इतने सारे बिजनेसेस है, तो सूरत की काफ़ी कम कंपनी कैपिटल मार्केट में थ्रू IPO पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसके बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? और हम तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम मोतीलाल ओसवाल को भी हम बहुत सपोर्ट चाहेंगे, मोतीलाल ओसवाल से भी। पर वेल्थ क्रिएशन का ये फंडा एज एन इन्वेस्टर तो आपने बहुत बताया, लेकिन एज अ फाउंडर प्रोमोटर हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं लिस्टेड कंपनी में जाने के लिए? देखिए, लिस्टिंग क्यों चाहिए? सबसे पहला तो हर एक मतलब इट हैज़ बिकम अ वेरी सेक्सी काइंड ऑफ आई थिंग स्टफ कि लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट क्यों चाहिए भैया? आपको अगर आपका बिजनेस अच्छा है, आपको जेन्युइन कैपिटल चाहिए, दैन यू गो टू द मार्केट। मैंने देखा हूँ, एक मेरे फ्रेंड का आया कि सर मेरा एक बोल रहा है कि राजकोट वाला बोल रहा है कि मैं आपकी कंपनी को लिस्ट करा दूंगा, मुझे 30% चाहिए। बोला क्यों 30% चाहिए? हम तो 2% में करते हैं। या तो तेरे में प्रॉब्लम है या उसमें प्रॉब्लम है। एंड वाई डू नीड मनी? As I said, that first rule of investing is the character, integrity. आपका जेन्युइन बिजनेस है, आपको ग्रोथ के लिए कैपिटल चाहिए, बाजार आपको बहुत देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आपका इरादा अच्छा नहीं है, इंटेंशन अच्छा नहीं है कि कैसे करके लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, तो फिर आप लंबे नहीं चलोगे। एक बार आपने पैसा भी ले लिया, कितनी कंपनियां लिस्ट होती है और कितनी सस्टेन होती है, मुझे बताइए। सो द इंटेंशन इज कैपिटल मार्केट आपको पैसा देगा अगर आपका बिजनेस जेन्युइन है और आपको पैसा चाहिए। लॉट ऑफ पीपल, बाजार अच्छा है पैसा ले लो, तो लेकिन आपकी जरूरत नहीं तो क्यों पैसा ले? देखिए, इक्विटी, ऑनेस्ट लोगों के लिए इक्विटी इज वेरी वेरी कॉस्टली। इक्विटी रिटर्न में लोग 15 से 20% एक्सपेक्ट करते हैं, प्राइवेट इक्विटी 25% एक्सपेक्ट करता है साल का। कौन से बिजनेस में 20-25% बनता है, मुझे बता दीजिए। सो इक्विटी जेन्युइन लोगों के लिए आपको तब जरूरत नहीं है तो लेने का, अगर आप लोगे तो आपके लिए बहुत महंगी है। अनलेस यू वांट टू, चलो पैसा ले लेते हैं, देख लेते हैं, तो आप आगे नहीं जाओगे। आप अपनी रेपुटेशन कैसे बनाओगे? लास्ट क्वेश्चन आप पूछ, लास्ट क्वेश्चन પછી એક ભાવેશભાઈને કાપીશું, એકદમ શોર્ટમાં રાખો પ્લીઝ। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और स्टॉक समझो कि 10 टाइम्स बढ़ जाता है, हाँ जी, तो इसमें एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? एग्जिट क्यों? किसके लिए एग्जिट? इन्वेस्टर्स के लिए। नहीं क्यों? नहीं, आपको एज एन इन्वेस्टर पूछ रहे हो, एज ए प्रमोटर? हाँ, तो क्यों बेचना है आपको? आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका लगता है क्वालिटी अच्छा है, प्रमोटर अच्छा है, तो क्यों बेचना है आपको? ऐसे स्टॉक मिलेंगे नहीं आपको, मिलेंगे नहीं आपको। मैंने AU बैंक में इन्वेस्ट किया था। AU बैंक आपको पता है लिस्टेड है, पैसा इसका नाम था AU फाइनेंशियल्स था। 60 करोड़ में कंपनी मिलती थी। अभी 50-60 हज़ार, 50 हज़ार, पता नहीं कितने हज़ार करोड़, अभी भी हमारे पास कुछ स्टॉक है। अरे अच्छी कंपनियां, दे आर फॉर एवर, बाई राइट सिट टाइट। लास्ट क्वेश्चन सर, मेरा नाम भावेश टेलर है और ग्रुप चेयरमैन हूँ SGCCI का। मैं वैसे तो रियल एस्टेट बिजनेस से बिलोंग करता हूँ। मुझे ये बताइए कि सेविंग का कितना परसेंटेज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, अगर इन्वेस्ट करना है तो शेयर डायरेक्ट इक्विटी में कितना होना चाहिए और म्यूचुअल फंड में कितना होना चाहिए, और PMS लेना चाहिए कि नहीं? देखिए, और तीसरा सवाल कि लॉन्ग जो मिड कैप है, स्मॉल कैप है और लार्ज कैप है, तो उसमें कितना रेशो कैसे होना चाहिए? लाइफ को क्या है ना, हम लोगों ने कॉम्प्लिकेट करके रखा आपके लिए। कीप इट वेरी सिंपल। सबसे पहले अगर आपका रिस्क, देखिए आपको इक्विटी और पैसा आपके पास सेविंग्स है, कहीं के तो इन्वेस्ट करना आपको, बैंक में FD में, वो भी इन्वेस्टमेंट ही FD में डाला हुआ है, सो यू हैव टू इन्वेस्ट समवेयर। अब आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है? अगर आपको रोज़ बाजार तो ऊपर नीचे होगा, अगर आपको उसमें नींद आपकी ख़राब नहीं होती है ना, तो ज़्यादा पैसा डालिए इक्विटी में, और जो आपकी नींद खराब होने लगे आप पैसा कम डालिए इक्विटी में।
जैसे मैंने बताया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो 100% इक्विटी में, मुझे टेंशन ही नहीं है। बाजार 40 टका गिर जाएगा उस रात को, मुझे अच्छी नींद आती है। गुड। और क्यों, मुझे पता है तो आने वाली अच्छी कंपनी है, बट वो मेरा एक्सपीरियंस है। तो कई लोगों को रात को मतलब टेंशन आता है, अरे सर नुकसान हो गया, अभी क्या करें, ये हो गया, वो हो गया, वैसा हो गया। भाई ऐसा काम मत करो जिससे टेंशन हो जाए। सेविंग्स है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है आपको। सो आपके रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके बाद आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सेफ खेलना है, मान लो तो मे बी यू कैन सेव 50 टका 40 टका मैं इक्विटी में डालूंगा, बाकी का आप डेट फंड में डाल दीजिए या एफडी में डाल दीजिए। अब 40 टका इक्विटी में है ना, आपको जस्ट पुट एटलीस्ट मनी इनटू फ्लेक्सी फंड्स, जहाँ स्मॉल मिड कैप सब आता है। लेट द स्मार्ट पीपल डू वर्क फॉर यू। लार्ज कैप इज द सेफेस्ट, बट रिटर्न थोड़ा कम आता है। मिड कैप थोड़ा वोल्टेज ज़्यादा, उसमें रिजल्ट ज़्यादा आता है, इसलिए आप फ्लेक्सी कैप में डाल लीजिए। सर ये जवाब मैंने पहली बार सुना, आज तक उसका मैथमेटिकल आंसर सुना था, इतना परसेंट इसमें इतना, पर ये एकदम नया कि जब से आपकी नींद खराब लगे तब से स्टॉप हो जाए, अदरवाइज शेयर बाजार में डालते रहिए। वंडरफुल। वैसा अरे भाई लास्ट से પછી 1 to 1 પૂછી લેશે પ્લીઝ। 1 to 1 અહીંયા છે સાહેબ પ્લીઝ। अभी एंड की ओर जा रहे हैं। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं निखिल भाई को बुलाना चाहता हूँ। हमारे काफ़ी कार्यदक्ष मेंबर रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। एक चीज़ मुझे याद आती है, अभी जब ये नई लीडरशिप टीम का इंस्टॉलेशन हो रहा था तो हर्ष भाई संघवी आए थे, और हर्ष भाई संघवी ने बताया था कि लोकसभा की इलेक्शन से ज़्यादा जहाँ पर एक्साइटमेंट था वो चैम्बर की इलेक्शन थी, और वो इलेक्शन में चूक के जो आए हैं, ऐसे निखिल भाई को हम सुनने के लिए इंतजार करें। Good evening, everyone. On behalf of all 12,500 members and 150 associations of the Southern Gujarat Chamber of Commerce Industry, I am honored to extend our heartfelt gratitude to Mr. Motilal Oswal ji, the living legend of the Motilal Oswal Group, for gracing us with his esteemed presence today. Sir, your journey from humble beginnings to becoming a stalwart in the financial world is nothing short of inspirational. Your insights today have provided us with a wealth of knowledge and a renewed sense of purpose. Your commitment to excellence and innovation has set a benchmark for all of us to aspire to. We are deeply grateful for your time and the invaluable wisdom you have shared with us. અંતમાં ગુજરાતીમાં કહું તો એમની એક વાત આપણને બહુ ગમી, અને તે વધુ જ્ઞાન નહીં પરંતુ એક્શન જોઈએ, એટલે હું મારું વધુ જ્ઞાન નથી આપતો અને એક્શનમાં આ વોટ ઓફ થેન્ક્સ સમાપ્ત કરું છું। પરંતુ તે પહેલાં આ કાર્યક્રમ માટે જેઓ સંપૂર્ણપણે અમને કોઓપરેટિવ રહ્યા છે તે CA પ્રદીપ સિંઘીજી, જીતોના ચેરમેન લલિતભાઈ શાહ, અમારી ટોટલ કમિટી આ શેર માર્કેટની અલ્પેશભાઈ શાહ અને CA ધ્રુવ મરડિયા સહિત આપ સૌ મિત્રો અહીં આટલી મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા એ માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। મોતીલાલજી, હું એટલું જ કહેવા માગું છું અંતે कि आपकी महफिल में आए थे फ़कीर बन के, आपने इतना ज्ञान बांट दिया कि हम सब जा रहे हैं जहांगीर बन के। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।